Hello students, welcome back. Let's continue with the discussion for the MCQs for module number 3. Children, first two modules we have already discussed. You must have got an idea how the MCQs are asked in the exam. Here we go with module number 3. Children, module number 3, as we all know, is related to banking sector, the money supply, ISLM curves, right? Okay, so here we are, children, talking about module number 3. So let me mention it out here that these are the MCQs related to module number 3. In the third module, children, the first or according to these chapters, the 11th chapter that we had, as you all know, I have taught it to you. It is related with the ISLM model. Now IS और LM curves का derivation सिखाया था मैंने आपको. IS curve का derivation जो था, it explains the equilibrium in the goods market, and then we have got the LM curve, children, explains the equilibrium in the money market. So let's see what are the objectives like. Question number 1, which of the following curve shows the goods market equilibrium? So as I already told you, children, money market equilibrium is explained with the help of LM curve, and the goods market equilibrium is explained with the help of IS curve. And I also mentioned to you that there is no full form for these words. They are the names of the curves that are derived, children. So our first answer is going to be option B, IS curve. It explains the equilibrium in the goods market. Achha, LM curve, children, would be an irrelevant option. Aggregate demand curve भी नहीं आता इसमें, none of the above का तो सवाल ही नहीं है. Question number 2, on which side of the following curve there is excess supply in the goods market? क्या बोला देखो बच्चों लोग, on which side of the following curve there is excess supply in the goods market? मतलब excess supply कहाँ पे होगा? Option 1, children, says right side of the IS curve. It would be left side of the IS curve, right side of LM curve, left side of LM curve. First of all, children, they are talking about the goods market. So option C and D are irrelevant because they are mentioning LM curve. Goods market है तो obviously क्या होगा, IS curve. और बचते हैं अपने पास दो ऑप्शंस, या तो IS के राइट साइड में या फिर IS के लेफ्ट साइड में. तो चलो जरा देख लेते हैं कौन से टाइप का था अपना ये IS कर्व. हमने जो IS कर्व डिराइव किया था, चिल्ड्रन, suppose it was a downward sloping curve, children, we had like this, right? So this is known as the IS curve. तो अगर आप IS कर्व के राइट साइड में जाओगे तो बच्चों लोग सप्लाई इंक्रीज होता है, एक्सेस सप्लाई माना जाता है उसको. अच्छा, इस साइड में जाओगे तो क्या हो जाएगा, कम होता है. सो actual option is going to be A, जहां पे लिखा हुआ है right side of the IS curve. Question number 3, children, which of the following is the slope of IS curve? IS curve का slope कौन सा रहता है? Now we all know, children, that IS curve actually has got a downward slope. अच्छा, if you remember the diagram का derivation सिखाया था मैंने आपको. अच्छा, for the people who are seeing it for the first time, you can just have a look here what kind of curve that was. First of all, children, we had drawn this 45-degree line which passes exactly through the center here. Achha. Then we had the first aggregate demand curve. This aggregate demand curve was matching with this rate of interest. अच्छा, फिर इसको हमने बोला था ये अपना इक्विलिब्रियम पॉइंट था बच्चों लोग, ये. अच्छा, फिर जैसे ही there is a fall in the rate of interest in the market, then the aggregate demand curve rises upward. Achha, and the equilibrium point also changes, children, here, and the new equilibrium point, as you can see, is this particular point, right? अच्छा, फिर हमने चलो इसको नीचे extend किया था. We had extended it down. अच्छा, and then we drew a curve like this, और ये curve भी यहाँ पे चलो derive किया था हमने. अच्छा, और ये जो दो intersection points है उसको join करने के बाद चलो IS curve का derivation हुआ था. कौन सा curve है? IS curve. So we all know that IS curve has actually got a negative slope. IS curve का slope negative होता है बच्चों. So positive, direct, none of the above, ये options नहीं आएंगे. Next question, children, which of the following will shift the IS curve to the left? IS कर्व लेफ्ट की तरफ किसकी वजह से जा सकता है?
आईएस कर्व चलो राइट साइड की तरफ जाने का रीजन होता है देयर इज अ इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड, राइट। अच्छा, तो आईएस कर्व अगर लेफ्ट साइड में जा रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि लाइक देयर इज अ ट्रेमेंडस डिक्रीज इन द एग्रीगेट डिमांड। अभी एग्रीगेट डिमांड कम क्यों होता है? क्योंकि लोग खर्चा कम करते हैं या फिर गवर्नमेंट खर्चा कम करता है। तो एक बात तो यहाँ पे ये इंक्रीज वाले ऑप्शंस हम लोग पहले हटा देते हैं क्योंकि इसमें कुछ इंक्रीज होने वाला नहीं है। अभी नन ऑफ द अबव वाला भी ऑप्शन मुझे नहीं लगता यहाँ पे चलेगा। तो बचता क्या है अपने पास यहाँ पे? डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। So what is the formula for aggregate demand? AD equals to C plus I plus G, right? जहां पे C stands for consumption, I stands for investments and G stands for government expenditure. So suppose children, ये जो C है और I है ये इंडिविजुअल लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, जबकि G is determined by autonomous spending by the government. तो अगर बच्चों गवर्नमेंट ने ये जो अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे पैसा खर्च होता है, मेट्रोज पे खर्च करते हैं, हाईवेज का कंस्ट्रक्शन होता है, बच्चों डैम कंस्ट्रक्ट करती है। आर यू अवेयर चिल्ड्रन, एवरी टाइम गवर्नमेंट स्पेंड्स मनी ऑन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, दैट मच ऑफ मनी गेट्स पम्प्ड इनटू द मार्केट, और बाय वन और द अदर वे दिस मनी विल रीच द हैंड्स ऑफ पीपल एंड देन पीपल विल स्टार्ट स्पेंडिंग दिस मनी ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाता है। अब चलो जैसे कोविड का सिचुएशन है, गवर्नमेंट के पास ज्यादा फंड्स अवेलेबल नहीं है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया रहेगा? अपना पब्लिक एक्सपेंडिचर कम किया रहेगा। अभी गवर्नमेंट खर्चा कम करती है, इसका मतलब आपको एक बात समझने की, लोगों का इनकम ऑटोमेटिकली कम होता है। तो लोगों का इनकम कम हो गया तो फिर लोगों का खर्चा कम होगा, लोगों का खर्चा कम होगा तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि लाइक एग्रीगेट डिमांड हैज डिक्रीज। ये अपने देश की जीडीपी को इफेक्ट करता है, द टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द कंट्री। सो ऑप्शन इज चिल्ड्रन बी, डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ओके, तो उसकी वजह से आईएस कर्व लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ओके, our next question children, which of the following will cause the LM curve to shift to the right? चलो LM कर्व जो रहता है उसका शेप पहले देख लेते जरा। ओके, सो सपोज चिल्ड्रन दिस शुड बी द L। अच्छा, ये गवर्नमेंट का या फिर आरबीआई का मनी सप्लाई रहता है। अच्छा, बट वी डोंट रिक्वायर द मनी सप्लाई कर्व डायरेक्टली। लेट मी शो यू व्हाट एग्जैक्टली इज दिस LM कर्व। तो LM कर्व चिल्ड्रन इज स्लोपिंग अपवर्ड्स, अपवर्ड स्लोपिंग वाला एक कर्व आएगा। ये देखो, ये होता है अपना LM कर्व। अच्छा, अभी क्या बोला है, किस रीजन की वजह से LM कर्व राइट की तरफ शिफ्ट होगा? अच्छा, LM कर्व राइट की तरफ शिफ्ट होने के पीछे एक ही रीजन होता है बच्चों, मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाता है। क्या बढ़ेगा? मनी सप्लाई, या फिर इट कुड बी आल्सो ड्यू टू द इंक्रीज इन द डिमांड फॉर मनी। अच्छा, तो डायरेक्टली आई कैन से यू लाइक दिस, ऑप्शन ए में लिखा हुआ है देखो, इंक्रीज इन मनी सप्लाई। कौन सा ऑप्शन आएगा? इंक्रीज इन मनी सप्लाई। डिक्रीज इन मनी सप्लाई की वजह से नहीं आता है, बिकॉज इट विल बी शिफ्टिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट। इंक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं, और डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर चिल्ड्रन, इट डजंट अफेक्ट द LM कर्व, इट अफेक्ट्स द IS कर्व। फिर बच्चों अपना क्वेश्चन नंबर 6, एट द पॉइंट वेयर IS कर्व एंड LM कर्व इंटरसेक्ट, which of the following markets are in equilibrium? बच्चों IS कर्व कौन सा मार्केट रहता है? गुड्स मार्केट। LM कर्व कौन सा मार्केट रहता है? मनी मार्केट। तो IS कर्व के ऊपर हर एक पॉइंट क्या बताता है कि गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम में। LM कर्व के ऊपर हर एक पॉइंट क्या बताता है कि लाइक मनी मार्केट इक्विलिब्रियम में। लेकिन एक कोई पॉइंट होता है बच्चों जहां पे IS और LM कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कराते हैं। ये देखो, दिस इज IS कर्व, दिस इज LM कर्व। तो चलो एक जो पॉइंट है दोनों को भी कॉमन हो गया, तो यहाँ पे मनी मार्केट भी इक्विलिब्रियम में होगा और गुड्स मार्केट इज आल्सो इन इक्विलिब्रियम। सो पहला ऑप्शन क्या है? गुड्स मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। गलत जवाब, क्योंकि कैपिटल मार्केट यहाँ पे रिलेटेड नहीं है। दूसरा ऑप्शन है चलो मनी मार्केट एंड गुड्स मार्केट, दैट शुड बी द राइट ऑप्शन दैट वी हैव। सी वाला गलत क्यों है देखते हैं। मनी मार्केट एंड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, नथिंग टू डू विद दिस कर्व। कैपिटल मार्केट एंड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट भी गलत ऑप्शन है। सो अपने लिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस LM कर्व इज हॉरिजॉन्टल? LM कर्व हॉरिजॉन्टल कब आएगा? हॉरिजॉन्टल चिल्ड्रन, वी नो हियर दैट LM का हॉरिजॉन्टल कब होता है? इट्स अ केस ऑफ दैट लिक्विडिटी ट्रैप, वो मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया था। At a high rate of interest, people demand less money
अच्छा, as the rate of interest keeps on falling, people keep on demanding more money. But when rate of interest can fall to around 2%, then there is a infinite demand for cash balances. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी ट्रैप करके बोलते हैं. तो यहाँ पे आपका LM का क्या बन सकता है चलो, हॉरिजॉन्टल बनने के चांसेस रहते हैं. सो आंसर इज चिल्ड्रन लिक्विडिटी ट्रैप. Okay, so these are the MCQs related with our chapter number 11. Children, chapter number 12 that we studied was related to the Phillips curve. कौन सा chapter था ये? Phillips curve से related. Okay, so that was chapter number 12. Again, I said like a very important chapter. And what did we study in this chapter? The Phillips curve in the short run and the Phillips curve in the long run. So let's see what are the questions. Question number 1. Phillips curve brings out trade-off between dash. कौन से दो वेरिएबल्स के बीच में ट्रेड ऑफ बताता है? अच्छा, कुछ लोग जनरली आप सब लोगों को पता है कि लाइक हमारे दो प्रॉब्लम्स होते हैं चिल्ड्रन. एक होता है इन्फ्लेशन यानी महंगाई, और दूसरा होता है बच्चों बेरोजगारी या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट. अभी आपको पता होना चाहिए बच्चों कि ये दोनों में से किसी एक को हमेशा हम लोग फेस करने वाले ही है. अगर आपको लगता रहेगा कि हाँ इन्फ्लेशन, आप बोलोगे कि सर बहुत महंगाई आ गई, बहुत महंगाई है करके, तो उसका एक एडवांटेज भी होता है बच्चों कि व्हेन देयर इज हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन, तो अपने इकोनॉमी में बच्चों अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल बहुत कम हो जाता है. क्यों? क्योंकि प्राइसेस बढ़ जाते हैं बच्चों लोग, तो कंपनीज ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए ज्यादा चीजें प्रोड्यूस करते हैं, ज्यादा चीजों को प्रोड्यूस करने के लिए ज्यादा लोगों को जॉब्स मिलते हैं. तो बच्चों इन्फ्लेशन गवर्नमेंट नहीं लाती, इन्फ्लेशन लाने वाले हम लोग ही होते हैं. लेकिन फिर कभी कभी प्रोटेस्ट करते हुए आपने देखा रहेगा, वी फाइट एंड गिव स्लोगन्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट, बट वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फ्लेशन थ्रू आवर स्पेंडिंग. अच्छा, अगर आपने और एक बात नोटिस की रहेगी कि लोग कितना भी रोते रहते हैं ना कि लाइक महंगाई आ गई है, महंगाई आ गई है, तो भी गवर्नमेंट कभी इतना दिल पे नहीं लेते कि उन्होंने फटक से उतर के इन्फ्लेशन को कंट्रोल में आया. इसके पीछे का और एक रीजन है, अगर गवर्नमेंट ने सीरियसली लिया और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश की, तो 6 महीने के बाद आप और एक आंदोलन निकालोगे, और वो क्या होगा, नौकरी नहीं है मेरे पास करके. क्योंकि जब चीजें बहुत सस्ती हो जाती है तो कंपनीज को लॉस होता है, कंपनीज को लॉस होगा तो फिर प्रोडक्शन कम हो जाएगा, प्रोडक्शन कम होगा तो फिर बहुत सारे लोगों को जॉब्स पे से निकालना पड़ेगा. अगर लोगों को जॉब्स पे से निकालेंगे तो फिर कौन सा प्रॉब्लम बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट. तो दे से लाइक दिस कि इफ यू वांट टू reduce unemployment, then you have to pay a price for it, and that is called as accept higher rate of inflation. But if you want to control inflation, then be ready to accept higher levels of unemployment. मतलब दोनों के बीच में हमेशा एक टग ऑफ वॉर चलता रहेगा, दोनों भी कभी कम नहीं होते बच्चों लोग. मतलब एम्प्लॉयमेंट का लेवल भी बहुत हाई है और इन्फ्लेशन भी कम, नॉट पॉसिबल. सो अपना ऑप्शन आता है बच्चों लोग पॉइंट बी, दैट इज फिलिप्स कर्व. ये बताता है कि लाइक किस तरीके से इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप आता है. हायर इन्फ्लेशन, लोअर अनएम्प्लॉयमेंट, लोअर इन्फ्लेशन, हायर अनएम्प्लॉयमेंट. राइट, आई हैव एक्सप्लेन इट थ्रू द डायग्राम आल्सो चिल्ड्रन. सेकंड क्वेश्चन है, इन द लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व इज डैश. तो द आंसर इज क्वाइट क्लियर इन फ्रंट ऑफ यू चिल्ड्रन थ्रू द डायग्राम आई हैव शोन यू दैट लॉन्ग रन, शॉर्ट रन में बच्चों लोग फिलिप्स कर्व could be actually sloping downwards, but in the long run Phillips curve would actually be a vertical line, क्योंकि वो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, एक वर्ड में सिखाया था मैंने आपको, नेहरू, नेचुरल एक्सिलरेटेड रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट करके बोलते हैं उसको. ओके, मतलब कम से कम उतना बेरोजगारी तो रहेगा. कुछ ना कुछ लोग होते हैं जिनको काम नहीं करने का रहता है. देयर आर सम पीपल हु इनहेरिट लॉट ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम द एंसेस्टर्स, दे डोंट वांट टू वर्क. या फिर everyone actually prefers those white collar jobs and then no one is ready for the field jobs. या फिर कभी कभी ऐसी भी होता है कि लाइक आपको लगता है कि लाइक आपका क्वालिफिकेशन जो है उतना सैलरी आपको नहीं मिल रहा है, तो देन यू वॉलंटरीली रिमेन अनएम्प्लॉयड चिल्ड्रन. राइट, सो दैट इज कॉल्ड एज द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. सो अपना आंसर आएगा बच्चों पॉइंट सी, दैट इज वर्टिकल. अच्छा, देन व्हाट इज स्टैगफ्लेशन? बच्चों लोग जब there is a increase in price level and employment, or increase in price level and increase in unemployment. मतलब चलो हमने क्या बात की थी अभी कि लाइक जब महंगाई आती है तो फिर बेरोजगारी कम होता है, लेकिन कभी कभी आपको दिखेगा
कि हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन भी होता है बच्चों, और एट द सेम टाइम देयर इज हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अभी प्रेजेंटली अगर आप देखोगे तो वी कुड बी गोइंग थ्रू स्टैगफ्लेशन। मतलब क्या, लोगों को जॉब्स भी चाह रहे हैं और मार्केट में देखोगे तो सब चीजें महंगी भी मिल रही है, तो उसको हम लोग स्टैगफ्लेशन बोलते हैं। स्टैगफ्लेशन opposes or it invalidates the Phillips curve, which says that there is inverse relationship between inflation and unemployment. So अपना ऑप्शन रहेगा पॉइंट ए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन चिल्ड्रन, स्टैगफ्लेशन ब्रिंग्स डाउन डैश। स्टैगफ्लेशन क्या रिड्यूस कराएगा? स्टैगफ्लेशन पे चलो एम्प्लॉयमेंट रिड्यूस करा। नाउ डोंट गेट कंफ्यूज विद द वर्ड्स, क्योंकि हम लोग इसको अलग अलग तरीके से यूज करते हैं ना। अनएम्प्लॉयमेंट कम होना एंड एम्प्लॉयमेंट बढ़ना होता है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ना एंड एम्प्लॉयमेंट कम होना होता है। तो यहाँ पे बच्चों स्टैगफ्लेशन के टाइम पे एम्प्लॉयमेंट कम होता है, यानी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 चिल्ड्रन, इट्स इन फ्रंट ऑफ यू। या what is it talking about? Supply side economics aims at increasing income by dash. Supply side economics children, that is producers, right? How can we increase the income of the people children? Can we do it by reducing prices? No. By increasing government expenditure? No. Supply side करके बोला है, तो it talks about the goods and services. So एक option है अपने पास, we can increase the income of the people by reducing the taxes. बच्चों, अगर 10 लाख का किसी का इनकम होता है तो उसका पर्सनल इनकम हो गया। इफ गवर्नमेंट टेक्स अवे 1 लाख रुपीज एज टैक्सेस, तो आपके पास जो बचता है पैसा उसको हम लोग डिस्पोजेबल इनकम बोलते हैं। इज द मनी लेफ्ट विद द पीपल आफ्टर पेमेंट ऑफ टैक्सेस टू द गवर्नमेंट। तो बच्चों, अगर गवर्नमेंट ने टैक्सेस रिड्यूस कर दिया, गवर्नमेंट ठीक है 1 लाख नहीं 50,000 का टैक्स पे करना, तो लोगों के पास 50,000 रुपए एक्स्ट्रा बचता है बच्चों एज डिस्पोजेबल इनकम। सो इट्स लाइक वी आर इंक्रीजिंग द इनकम ऑफ द पीपल। सी, वो 50,000 रुपए पहले आप गवर्नमेंट को देने वाले थे तो आपके पास 9 लाख बचने वाले थे, अभी आप सिर्फ 50,000 देने वाले हो तो फिर आपके पास एक्स्ट्रा 50,000 रुपए बच जाते हैं यहाँ पे। तो जो बचा वो इनकम, दैट्स इकोनॉमिक्स चिल्ड्रन। नेक्स्ट, अ टैक्स कट अकॉर्डिंग टू मिल्टन फ्राइडमैन। मिल्टन फ्राइडमैन के हिसाब से एक अगर टैक्स में हम लोग रिडक्शन लाते हैं तो व्हाट एक्चुअली हैपन? बच्चों, टैक्स ये हमारे लिए खर्चा होता रहेगा। फॉर द गवर्नमेंट चिल्ड्रन इट्स अ इनकम, राइट? गवर्नमेंट के बजट में 2 साइड्स होते हैं ना, एक होता है रिसीट साइड और एक होता है पेमेंट साइड, मतलब एक रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। हमने टैक्सेस कम कर दिए बच्चों, मतलब गवर्नमेंट ने टैक्सेस कम किए, अपने लिए अच्छा हो गया, बट गवर्नमेंट के लिए बच्चों लोग बहुत बड़ा लॉस होगा ना, क्योंकि उनका रेवेन्यू साइड बच्चों लोग छोटा पड़ेगा और एक्सपेंडिचर साइड तो उतना ही होता है। And when the expenditures are more and the revenue is less, children, that's got a separate word in budget, जिसको हम लोग बुलाते हैं deficit. मतलब it is going to increase the budget deficit. बजट में शॉर्टेज आएगा बच्चों लोग कि गवर्नमेंट का खर्चा ज्यादा होगा और गवर्नमेंट को रेवेन्यू कम मिलता है, इसलिए गवर्नमेंट टैक्स कट्स जनरली नहीं देती है। और अगर टैक्स कट देगी तो भी कुछ साइमल्टेनियस है, फिर कुछ ऑल्टरनेटिव टैक्सेस ढूंढे जाते हैं टू टैक्स द पीपल। अच्छा, question number 7 children, Laffer curve brings out the relationship between dash. So it's like you can just remember the answer, tax revenue and marginal tax rate. मतलब टैक्स का रेट थोड़ा सा भी अगर बढ़ाया जाता है, अगर 1% टैक्स बढ़ाने से गवर्नमेंट को 10,000 करोड़ का एक्स्ट्रा टैक्स मिलता है, तो फिर हम लोग उसको लाफर कर्व के जरिए एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा, सो दीज वर द ऑब्जेक्टिव चिल्ड्रन रिलेटेड टू अ सप्लाई ऑफ मनी। सप्लाई ऑफ मनी के बाद बच्चों अपना जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 13, एंड इट वाज टॉकिंग अबाउट व्हाट्स नोन एज द डिमांड फॉर मनी। क्या था ये चैप्टर? डिमांड फॉर मनी। अच्छा, डिमांड फॉर मनी चिल्ड्रन, लेट्स सी। यहाँ पे आपको 3 मोटिव सिखाया मैंने, वो आपको बार बार याद दिलाता हूं मैं। Why do people demand money? People demand money either they want to carry out transactions, दूसरा they want to save some money so that they can meet some problems that might arise in the future, तीसरा they want to speculate. Speculate का मतलब क्या होता है? They want to buy the assets when the prices fall and they want to sell the same assets when the price rise, thus making some profit. अच्छा, question number 1, traditional measure of money supply. क्या बोला? ट्रेडिशनल मेजर ऑफ मनी सप्लाई इंक्लूड्स डिमांड डिपॉजिट्स एंड टाइम डिपॉजिट्स,
बच्चों लोग बैंक्स में हम लोग कौन कौन से अकाउंट्स ओपन करते हैं? सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट और फिक्स्ड अकाउंट। इसमें से दो होते हैं डिमांड डिपॉजिट। आपने कभी सोचा बच्चों लोग, दो अकाउंट्स के साथ में आपको चेक बुक्स दिए जाते हैं, एक होता है अपना सेविंग डिपॉजिट और दूसरा होता है करंट डिपॉजिट। अच्छा, दो ऐसे अकाउंट्स होते हैं बच्चों जिसके साथ में चेकबुक नहीं मिलता है, क्योंकि वो टाइम डिपॉजिट है, एक पर्टिकुलर वक्त के लिए वो पैसा ब्लॉक हो जाता है, एंड दैट इज रिकरिंग डिपॉजिट एंड फिक्स्ड डिपॉजिट। तो पुराने जमाने के लोग किस चीज को पैसा मानते थे? उनको आप टाइम डिपॉजिट बताओगे ना कि लाइक मेरे पास एक एफडी है 5 साल का, तो दे माइट नॉट कंसिडर इट एज मनी। व्हाई? बिकॉज दैट मनी इज ऑलमोस्ट ब्लॉक्ड आउट फॉर 5 years. यू विल ओनली बी एबल टू लिक्विडेट इट आफ्टर 5 years. तो पुराने जमाने के लोग करेंसी मतलब नोट्स एंड कॉइन्स और डिमांड डिपॉजिट्स, डिमांड डिपॉजिट यानी कौन सा बच्चे लोग? सेविंग और करंट, बस इसी चीज को पैसा मानते थे। और इसलिए मैंने आपको एक फॉर्मूला भी सिखाया था, दैट इज सी प्लस डी डी, मतलब करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट्स। दैट वाज मनी अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल मेजर ऑफ मनी सप्लाई। दूसरा, द मेन ऑथर्स ऑफ ब्रॉड मनी। चिल्ड्रन, दिस टॉपिक इज एक्चुअली रिलेटेड टू मनी सप्लाई। ब्रॉड मनी के जो ऑथर्स थे चिल्ड्रन, दे आर गर्ली शॉ, मिल्टन फ्राइडमैन एंड रैडक्लिफ कमिटी। सो अपना ऑप्शन आएगा बच्चों लोग बी। दिस इज अ फैक्चुअल क्वेश्चन चिल्ड्रन। अभी ऐसे क्वेश्चंस में आप कैसे सर ए कैसे, ऐसा नहीं पूछने का, क्योंकि दिस इज समथिंग फैक्चुअल। हाई पावर्ड मनी, हाई पावर्ड मनी में क्या क्या आता है बच्चों लोग? हाई पावर्ड मनी का फॉर्मूला अगर आपको याद आ रहा है तो सी प्लस आर प्लस ओडी, ऐसे कुछ सिखाया था मैंने आपको। अच्छा, इज इट द मनी विद द पब्लिक एंड द सेंट्रल बैंक? नो, हाई पावर्ड मनी चिल्ड्रन इज नॉट विद द पब्लिक। दूसरा, करेंसी विद द पब्लिक, राइट? अच्छा, along with that reserves of the banks and other deposits with central bank. So ये वाला ऑप्शन ठीक रहेगा बच्चों लोग, C प्लस R प्लस OD, ये बच्चों लोग हाई पावर्ड मनी का फॉर्मूला आता है। सो अपने लिए ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी। फोर्थ क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर इज डिटरमाइंड बाय डैश। मनी मल्टीप्लायर चिल्ड्रन, कि कितना पैसा मार्केट में मल्टीप्लाई होता है, ये दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है बच्चों लोग। एक, करेंसी डिपॉजिट रेशियो। क्या बोला? करेंसी डिपॉजिट रेशियो मतलब बच्चों लोग, डू द पीपल प्रीफर करेंसी, मतलब लोग अपने पास कैश रखना चाहते हैं या फिर वही पैसा वो लोग जाके बैंक्स में डिपॉजिट करना चाहते हैं। लोग अगर सब पैसा अपने पास रखेंगे तो आपको पता है चलो पैसा मल्टीप्लाई नहीं होगा, लेकिन वही पैसा अगर आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया तो आपको पता है चलो उसमें से बैंक्स किसी और को लोन देते हैं, वो जाके दूसरे बैंक में डिपॉजिट करेगा, वो तीसरे बैंक में जाके किसी और को चेक इश्यू किया जाता है। और एक होता है चलो रिजर्व रेशियो। किसी भी बैंक के पास, अच्छे से सुनना, किसी भी बैंक के पास जितना भी पैसा आता है उन लोगों को उसमें से कुछ परसेंटेज बच्चों आरबीआई के पास रखना पड़ता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अराउंड 3 to 4%। तो अगर बच्चों एचडीएफसी बैंक के पास अगर 100 करोड़ के डिपॉजिट्स आ गए तो उन्होंने अज्यूम करना चलो 3.5 करोड़ रुपए उसमें से उठा के आरबीआई को दे दिए। हर एक बैंक के पास जितना पैसा आता है बच्चों उसमें से कम कुछ नहीं 18 to 19% अमाउंट बच्चों गवर्नमेंट को देना पड़ता है बाय इन्वेस्टिंग इन देयर सिक्योरिटीज। तो बच्चों मुझे लगता है कुल मिला के 21 से फिर 22% पैसा जो चला गया बैंक का, जितना बचता है उससे वो लोग बिजनेस करते हैं, राइट? नाउ यू टेल मी कि like the currency deposit ratio and the reserve ratio they determine like how much money is going to get multiplied। अगर ज्यादा पैसा आरबीआई और बैंक को देना पड़ा तो फिर बैंक्स ज्यादा पैसा लोन करके नहीं दे पाएगी। सो आंसर चिल्ड्रन इज रिलेटेड विद पॉइंट सी। तो दैट इज करेंसी डिपॉजिट रेशियो एंड द रिजर्व रेशियो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 चिल्ड्रन, Radcliffe committee suggested that money supply should include dash, that is the funds lent by financial institutions। मतलब financial institutions जो होते हैं एनबीएफसी बोलते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस, वो लोग जितना भी लोन्स देते हैं उसको भी हम लोग मनी सप्लाई में इंक्लूड कर सकते हैं। दैट इज अ सजेशन गिवन बाय Radcliffe committee। क्वेश्चन नंबर 6, द ब्रॉडर मेजर ऑफ मनी सप्लाई अडॉप्टेड बाय आरबीआई इज रिफर्ड टू एज डैश। उसको हम लोग एग्रीगेट मॉनेटरी मेजर्स और एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज करके बोलते हैं इसको यहाँ पे। ओके, ब्रॉडर मेजर ऑफ मनी चिल्ड्रन, M1 M2 ऐसे कुछ फॉर्मूलाज देखे थे हमने। क्वेश्चन नंबर 7, the average number of times a unit of money is used for making payments for final goods and services is known as dash। Children, it's nothing but the income velocity का definition है।
कितनी बार हम लोग अपने पास के पैसे को फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को पे करने के लिए यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इनकम वेलोसिटी। फिर मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला पूछा बच्चों यहाँ पे, और मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला यहाँ पे आपको ऑप्शन डी में दिखेगा, 1 प्लस के अपॉन आर प्लस के। के इज चिल्ड्रन मल्टीप्लायर, आर का मतलब होता है रिजर्व्स। 9th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस मनी सप्लाई? हाई पावर्ड मनी, यस। कम्युनिटी चॉइस, यस। मनी मल्टीप्लायर, यस। तो मुझे लगता है ऑप्शन इज गोइंग टू बी ऑल ऑफ द अबव। Which of the following is not a true of excess reserve held by commercial bank? बच्चों लोग अभी मैंने आपको बताया था कि किसी भी बैंक के पास जितना पैसा आता है उसमें से अज्यूम करना एचडीएफसी में से एचडीएफसी बैंक ने एक 4 करोड़ रुपए आरबीआई को दे दिए, एक 19 करोड़ रुपए उन्होंने बच्चों लोग गवर्नमेंट को दे दिए। तो रिजर्व बैंक ऑफ मतलब एचडीएफसी बैंक के पास पैसा कितना बचेगा? 21 करोड़ अगर चला गया है, फिर 22 करोड़, तो बच्चों अराउंड 78 करोड़ एचडीएफसी के पास बचेगा। अभी आप बताओ बच्चों, ये जो 78 करोड़ बाकी है एचडीएफसी का, वो पूरा का पूरा लोन करके दे सकते हैं? नहीं, क्योंकि बच्चों जो लोग बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं वो हर रोज विड्रॉ करने के लिए भी तो आएंगे। तो सवाल यह आता है कि लाइक बैंक को आरबीआई और गवर्नमेंट को जो पैसा देना है उसके अलावा they have to hold some extra reserves with themselves children, तो कुछ पैसा वो लोग अपने पास रखते हैं। अज्यूम करना बच्चों लोग कि एचडीएफसी बैंक एक 15 करोड़ का कैश अपने पास रखता है। क्यों? क्योंकि पब्लिक कभी भी विड्रॉ करने के लिए आ सकती है ना, तो पब्लिक विड्रॉ करने के लिए आ गए बच्चों, तो आप उनको ऐसे नहीं बोल सकते कि पैसा नहीं है बाद में आना करके, नहीं तो फिर वो लोग अपना सब पूरा का पूरा पैसा विड्रॉ कर लेंगे फिर। अच्छा, एक 15 करोड़ लोग अपने पास होते हैं, और अगर आपने कभी बैंक में ऑब्जर्व किया है ना, तो एक डिपॉजिट काउंटर होता है, एक विड्रॉवल काउंटर होता है, राइट? तो कभी कभी एक ही कॉमन काउंटर आता है, विड्रॉ भी वहीं से होता है और फिर डिपॉजिट भी वहीं पे होता है। एंड इफ यू जस्ट ऑब्जर्व चिल्ड्रन, वो लोग क्या करते हैं, पहले 4-5 लोगों से पैसा ले लेते हैं डिपॉजिट्स, और बाद में एक विड्रॉ करने वाले का टोकन नंबर बुलाते हैं। अच्छा, जैसे कि फॉर एग्जांपल, मतलब जब तक बाहर का पैसा आ रहा है तब तक अपने रिजर्व्स को हाथ नहीं लगाने का। जैसे सपोज 4 लोगों ने आके कुछ 1.5 लाख रुपए डिपॉजिट कर दिया, और उसके बाद में एक बंदा आ गया जो 1 लाख रुपए विड्रॉ करना चाहता है, तो अभी अभी जो 1.5 लाख आया उसमें से 1 लाख रुपए उठा के दे दो। अगला व्यक्ति जो आया है वो 2 लाख रुपए मांग रहा है, तो एक काम करना और 10-12 लोगों का जो कैश डिपॉजिट करने के लिए आए वो कलेक्ट कर लेना। जैसे ही जमा होता है वो 2 लाख वाले बंदे को बुलाने का, टोकन नंबर लेके फिर उसको दे देने का। हाँ, सडनली अगर कोई 25 लाख मांगने के लिए आ गया तो उतना रिजर्व आपके पास नहीं है, तो क्या करने का, अपने रिजर्व में से थोड़ा पैसा उठा के आप उसको दे सकते हो। ये एक्स्ट्रा रिजर्व होते हैं बच्चों लोग, बिकॉज पीपल विल कम। देखो, टाइम डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट वाले लोग कब आने वाले हो हम लोग को ऑलरेडी पता होता है, क्योंकि इट्स अ मैच्योरिटी डिपॉजिट। लेकिन सेविंग और करंट वाले लोग कब आएंगे आपको पता नहीं होता है, दैट इज व्हाई वी हैव टू मेंटेन दोस एक्स्ट्रा रिजर्व्स। अच्छा, तो ये सेंटेंसेस क्या देखते हैं, बैंक्स स्टैट्यूटरीली होल्ड देम, मतलब बैंक्स को होल्ड करना ही पड़ता है। यस, एंड द आंसर इज राइट चिल्ड्रन। बी में क्या लिखा, दे आर डिटरमाइंड बाय क्लियरिंग ड्रेन एंड करेंसी ड्रेन। नो, दे आर वॉलंटरीली हेल्ड बाय द बैंक्स एंड दे इन्फ्लुएंस द मनी मल्टीप्लायर। सो ऑप्शन ए इज राइट आंसर चिल्ड्रन here. Okay, let's go towards the next topic children. Now this should be related to the demand for money. पहला, transaction demand for money is explained by dash. Answer is children classical economists. So पुराने जमाने के लोगों को लगता था कि like why do people demand money? Because they need to carry out day-to-day transactions. Question number 2, transaction motive is further subdivided into. ट्रांजैक्शन का पैसा 2 लोगों को लगता है बच्चों लोग, एक हाउस होल्ड्स को और दूसरा होता है बच्चों बिजनेसेस को। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हियर, इनकम मोटिव एंड बिजनेस मोटिव। सो सैलरी अर्नर्स एंड बिजनेसमैन। क्वेश्चन नंबर 3, डिमांड फॉर स्पेक्युलेटिव मोटिव इज रिफर्ड टू एज डिमांड फॉर आइडल कैश बैलेंस। बच्चों लोग जो पैसा हम लोग खर्च करते हैं वो एक्टिव कैश बैलेंस होता है, और जो पैसा बचा के रखते हो वो आइडल कैश बैलेंस होता है। तो आपने क्या किया बच्चों, आपके पास एक्स्ट्रा पैसा था इसलिए आपने शेयर्स खरीद लिए, और फिर बाद में आपने उस पैसे को होल्ड करके रखा है। 10 साल के बाद आपको शेयर्स बेच के वापस से पैसा मिलता है, तो दैट इज कॉल्ड आइडल कैश बैलेंस। अच्छा, 4th,
डिमांड फॉर ट्रांजैक्शन एंड प्रिकॉशनरी मोटिव इज इंटरेस्ट इन इलास्टिक। आप खर्चे के लिए, प्रिकॉशन के लिए कितना पैसा अपने पास रखते हो, ये इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, तो चलो वो आपके इनकम के ऊपर डिपेंड करेगा। अकॉर्डिंग टू फ्राइडमैन, हाउसहोल्ड डिमांड मनी टू हैव कमांड ओवर डैश रियल गुड्स एंड सर्विसेज। तो चलो हमको पैसा क्यों लगता है, क्योंकि मुझे खर्च करना है। क्यों खर्च करना है? क्योंकि मुझे गुड्स एंड सर्विसेज लाना है। तो चलो घर के लिए ग्रोसरी लाना होता है, मुझे इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना होता है, मोबाइल में रिचार्ज मारना है, चलो, या फिर मुझे ट्रैवल करने के लिए यूज करना है। यहाँ पे मतलब ये क्या है? चलो, दीज आर नथिंग बट गुड्स एंड सर्विस। अगर मुझे ग्रोसरी की जरूरत नहीं पड़ती थी, अगर मुझे इंटरनेट रिचार्ज नहीं मारना है, मुझे इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरना नहीं, मुझे ट्रैवल भी नहीं करना, तो सवाल आता है कि लाइक मुझे पैसे की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ लिक्विडिटी ट्रैप? लिक्विडिटी ट्रैप का मतलब क्या होता है बच्चों? कि अगर बैंक्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट कहीं पे गलती से 2% पे आ गया, बैंक्स आपको बोलेगी कि लाइक आप मुझे 1 लाख रुपए दे दो और हम लोग आपको 1 साल के बाद 1 लाख और 2,000 रुपए देते हैं। फिर लोग बोलेंगे कि एक काम करो, मैं अपने पास ही रखता हूँ पैसा, क्योंकि हम लोग खुद यूज करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा ना। तो आपको लगता है 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पीपल आर नॉट गोइंग टू गिव देयर मनी टू द बैंक्स, मतलब सबका सब पैसा ना लोगों के पास ट्रैप हो जाता है एंड पीपल आर नॉट लेंडिंग मनी। तो बैंक्स क्या करते हैं? फिर थोड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा के वो पैसे को वापस से एब्जॉर्ब करने की कोशिश करती है। सो क्या क्या सेंटेंसेस है बच्चों? इट इज अ कंडीशन दैट टेक्स प्लेस एट अ वेरी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये स्टेटमेंट बराबर है, लेकिन हम लोगों को नॉट ट्रू पूछा है। एन इंक्रीज इन मनी सप्लाई वुड नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ इंटरेस्ट। इंक्रीज इन मनी सप्लाई वुड नॉट अफेक्ट, ये बच्चों लोग लिक्विडिटी ट्रैप से रिलेटेड ही नहीं है। इट रिप्रेजेंट्स परफेक्टली इलास्टिक डिमांड फॉर लिक्विडिटी। दिस इज अ प्रॉपर स्टेटमेंट चिल्ड्रन। तो पीपल प्रीफर बॉन्ड्स इंस्टेड ऑफ कैश, उल्टा है बच्चों, पीपल प्रीफर कैश इंस्टेड ऑफ बॉन्ड्स। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड बॉन्ड प्राइसेस इज ड्यू टू डैश। बच्चों देखो कि या तो लोग कैश अपने पास रख सकते हैं, राइट, या तो फिर हम लोग शेयर्स और सिक्योरिटीज रख सकते हैं। अगर बच्चों लोग सपोज बैंक्स हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही है, तो हम लोग क्या करेंगे बताओ? वो पैसा बैंक को दे देंगे। लेकिन वहीं पे अगर बैंक हमको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही है, तो फिर वो हम लोग पैसा अपने पास ही रखेंगे। इट्स लाइक हाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग कैश। ओके, सो अगर आप अपने पास रखोगे तो ज्यादा नुकसान होगा आपको, एंड दैट शुड बी द प्रॉब्लम। Yes, and finally children, we come towards the chapter number 15 from module number 3. It was related to money and prices, right? Choose the correct answer from the following alternatives. The inverse price level measures dash. Inverse price level which लोग generally क्या measure करता है? It measures the value of money. बच्चों लोग कभी किसी कमोडिटी का प्राइस अगर आधा हो गया तो समझ जाने का कि पैसे का वैल्यू डबल हो गया है। पहले जो चीज आपको 20 रुपए में आती थी वो अभी 10 रुपए में मिल रही, तो इसका मतलब पैसे का वैल्यू बढ़ गया। लेकिन अगर किसी कमोडिटी का प्राइस डबल हुआ तो समझ जाने का कि पैसे का वैल्यू आधा हो गया है। ऐसा ये इनवर्स रिलेशनशिप आता है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स फिशर्स इक्वेशन? MV इज इक्वल टू PT। ये बच्चों इसमें से लेफ्ट साइड सप्लाई ऑफ मनी बताता है, राइट साइड डिमांड फॉर मनी बताएगा। दैट्स फिशर्स इक्वेशन। इन फिशर्स इक्वेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सोजेनसली डिटरमाइंड? दैट इज M का मतलब होता है बच्चों लोग यहाँ पे स्टॉक ऑफ मनी। ये बच्चों स्टॉक ऑफ मनी इज नॉट डिटरमाइंड बाय द पीपल बट बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज अ मॉनेटरी अथॉरिटी। डैश फर्स्ट डेवलप द कैम्ब्रिज वर्जन ऑफ क्वांटिटी थियोरी ऑफ मनी? अल्फ्रेड मार्शल। चिल्ड्रन, मार्शल ने डेवलप किया था। फिर कैम्ब्रिज में K रिप्रेजेंट्स डैश। K का मतलब होता है बच्चों लोग यहाँ पे प्रोपोर्शन ऑफ रियल इनकम हेल्ड एज कैश बैलेंसेस। अच्छा, चिल्ड्रन, जस्ट वांट टू टेल यू समथिंग हियर दैट लोगों के पास जब पैसा होता है, अगर मैं बोलता हूं कि लाइक मेरे पास 50 लाख रुपए है या फिर मेरे पास 1 करोड़ रुपए है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि मेरे पास वो पूरा 1 करोड़ रुपए ऐसा गोडाउन में थप्पी मार के रखा रहेगा या फिर रोकड़ा रखा है मैंने। उसका मतलब ये भी तो हो सकता है बच्चों कि मेरे पास 50 लाख रुपए का एक घर है,
अच्छा, एक 10 लाख रुपए का कार है, एक 30 लाख रुपए का मेरा कुछ इन्वेस्टमेंट्स है, हाँ, और ये सबके बीच एक 5 लाख रुपए का कैश मैंने घर पे रखा है। तो आपने देखा है 1 करोड़ रुपए का मेरा टोटल इनकम है और उसमें से सिर्फ 5 लाख रुपए बच्चों लोग कैश फॉर्म में आता है। अच्छा, मैंने क्यों कैश फॉर्म में रखा रहेगा वो 5 लाख रुपए? क्योंकि मुझे पता है कि मुझे कभी भी खर्चे के लिए लग सकता हो पैसा। सो 1 करोड़ जब आपका इनकम है तो उसमें से 5% आप क्या करते हो बच्चों लोग? कैश फॉर्म में रखते हो। सो इट्स अ प्रोपोर्शन ऑफ रियल इनकम हेल्ड एज कैश बैलेंसेस। और एक फॉर्मूला भी बताया था मैंने आपको, दैट इज मनी सप्लाई और डिमांड फॉर मनी MD इज इक्वल टू K इंटू Y। K का मतलब प्रोपोर्शन। जैसे इनकम अगर बच्चों लोग 1 लाख करोड़, अगर मैं बोलता हूँ इंडिया का इनकम इतना है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि लाइक इंडिया के पास उतना कैश रहेगा। गुड्स एंड सर्विसेज होते बच्चों लोग। फाइनली, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ द कैम्ब्रिज वर्जन ऑफ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी? पहला, कंसिडर स्टोर वैल्यू ऑफ फंक्शन ऑफ मनी, नहीं। कंसिडर्स ओनली ट्रांजैक्शन मोटिव फॉर होल्डिंग मनी, बराबर। कंसिडर्स K as constant, this is not Cambridge version, and considers M to be exogenously determined. Yes. So children, here this is the option which is actually, उन्होंने क्या पूछा है चलो, नॉट ट्रू करके बोला, तो A C D बराबर है, B वाला गलत है, तो अपना ऑप्शन आएगा B। Okay. Children, finally, in the coming lecture, I will be explaining to you the MCQs related to inflation chapter number 16, chapter number, जहाँ पे हमने inflation के causes, inflation के measures और inflation के effects देखे थे। So with that, you should be ready for your exams, children. So that's all for today. Thank you very much. Take care and see you in the next lecture.